So class 12, this is the revision class from those topics which I have completed till now. Okay. Till 26th, how much I have completed, that I will revise so that you can benefited by that. Okay. So I have completed all the theory portion, whatever I have explained. So we will be having a quick revision of theory portion. Then we will come to our practical portion. Okay. So in theory portion, first of all, there is the introduction is very necessary. So introduction of necessary, our chapter name is partnership fundamental. That is everybody is knowing. So partnership and fundamental. Why the partnership arises? Why? Sole proprietorship जब हमने पढ़ा था, when we have learned, then there were some limitations of sole proprietorship. ठीक है, कौन कौन सी limitation थी? There were less capital, there was risk involved of profit and loss, and there was less expansion and growth of the business, lacking of expansion and growth of the business. ठीक है, only one man capital was there, only one man control was there, only one man has to bear all the losses and profits. So that to overcome from these problems, a new organization has arises, that is called partnership. Okay, partnership firms we can say. Okay, so partnership में क्या होता है? It's a relation between two or more than two persons. ठीक है, those who come together, those who join together to run the business and acquire profit in particular ratio. Okay, so partnership is what? Partnership is a relation between person who have agreed to do the business, who have agreed to share the profits of a business, carried by all or any of them acting for all. कैरीड बाय ऑल मतलब जितने पार्टनर्स हैं वो सब कैरी करेंगे, सब बिजनेस को जो है बढ़ाएंगे, सब बिजनेस पे वर्क करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब उनमें से कोई एक जो बिजनेस को चलाएगा और सारे लोग. जैसे कभी कभी क्या होता है, इट हैपेंस दैट सम पर्सन्स दे हैव कैपेबिलिटी to give the money, but they don't have time to run the business, to carry the business. So they put their investment, they put their capital, they put their money, but they do not take any part in the business, in running the business. So rest of the partners, they used to carry the business and they used to uh, use their capital. Okay, so इसलिए यहाँ पे लिखा गया है by all the partners, या तो सारे partners के थ्रू, और या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब उनमें से कोई एक जो सबके लिए काम करे, क्योंकि जो पैसे लगाएगा वो प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा. ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? यस मैम. इतनी क्लियर हो गई बात? वेरी गुड. Yes, ma'am. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन की बात की पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्या मतलब है? जो बेसिक चीजें हैं, वट एवर यू विल डू इन योर नेक्स्ट लेवल, दैट इज सेकेंड पोर्शन, दैट इज एडमिशन. तो एडमिशन के पहले जो जो एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट जो अभी हम बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना, लोन का सेटलमेंट कैसे होता है, पैसों का प्रॉफिट का सेटलमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे. ठीक है, तो दूसरी चीज आती है, अब पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स विल ऑल्सो शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस. ठीक है, वो रेशियो कहाँ दिया होता है? ठीक है, ओके ओके. सो पार्ट, इसके बाद एक सेकेंड पॉइंट आता है आपका पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया? सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन दिया है मैंने. सिंपलेस्ट चीज है कि टू ओवरकम फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, partnership arises. The partnership is what? Is a mutual relation of trust and faith. In order to maintain the trust, it is necessary that the partnership account is to be maintained very accurately. Okay, ताकि पार्टनरशिप अकाउंट जो हो वो हमारे फेयर और ट्रू पोजीशन बता सके, रिजल्ट्स बता सके. ठीक, अब सेकेंड चीज आती है पार्टनरशिप डीड. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ बेटा, क्योंकि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं अभी वो चीज लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी कवर करना है. ओके, सो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं बता रही हूँ, बाकी आपके पास नोट्स है, यू हैव टू रीड इट, एंड इफ एनी प्रॉब्लम यू हैव टू आस्क मी. पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या है?
क्या होता है कि सिंस वन पार्टनरशिप इज आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। जब हम पार्टनरशिप कर लें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज हो जाती है कि उसका एक एग्रीमेंट बन जाए। भाई सपोज मैं महावीर समरम और कई लोग मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, कुछ रिटन में है कि हम वी आर पार्टनर्स और हम लोग पार्टनर कर रहे हैं, इतने इतने शेयर पे प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं है। सो इट शुड बी देयर, राइट? तो ओके चिल्ड्रन, सो अगर हम बात करें पार्टनरशिप डीड की, तो इट इज नॉट कंपल्सरी बाय द लॉ टू मेंटेन इट, to be to have a partnership deed in written, but it is important, it is essential because it helps the partners to solve the disputes among them, to solve the misunderstanding among them. ओके, अगर मान लीजिए कि कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी कोई दिक्कत आती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है उनके बीच में, तो दिस अग्रीमेंट हेल्प्स देम अलॉट। ओके, क्योंकि इन इस एग्रीमेंट में ऑल द टर्म्स, जो भी टर्म्स होते हैं बिजनेस को लेके, जो भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो सारे रिटन फॉर्म में होते हैं अंडर रजिस्टर्ड विच एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट। अंडर द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज written or it is registered under the act. So this is a written document which contains all the terms and all the conditions, that is called partnership deed. Okay, so the document which contains all the terms and all the terms and condition regarding the partnership, that is called partnership deed. अब partnership deed में लिखा क्या क्या होता है, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं उसमें? जैसे आपके पार्टनर्स हो गया, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, द टाइप ऑफ द नेचर, बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है, हमारा वास्ट क्या है, जितनी कैपिटल अमाउंट जो है वो पार्टनर्स ने लगाई है वो सब डीड में दिया होगा, ठीक है, दैट विल बी मेंशन्ड इन द किस किस पार्टनर ने कौन कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, किस पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो वो किस रेट से मिलेगा, दैट विल आल्सो बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। उसके बाद अगर ड्राइंग्स कोई पार्टनर करता है तो उसको किस हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डीड में लिखा होगा, ठीक है। अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होंगे, इक्वल बांटा जाएगा या कोई सर्टेन रेशियो है या कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांटा जाएगा पार्टनर्स में, वो सारी चीजें। गुडविल क्या होगी, किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिलनी है तो वो उसमें मेंशन होगा। कंपनी की ऑडिटिंग जो आपके फर्म होगी उसके ऑडिटिंग कैसे होगा, कैसे फर्म की बुक्स को चेक किया जाएगा, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या क्या रहेगी, ठीक है, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप जो हम कर रहे हैं उसमें जो चेक साइन होंगे वो किसके नाम से होंगे, वो फर्म के नाम से होंगे कि पार्टनर्स के नाम से होंगे। सो दीज ऑल थिंग विल बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। क्लियर इट? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we will come to our next point, that is rules applicable in the absence of partnership deed. Suppose पार्टनरशिप डीड वी हैव ऑल नो दैट व्हाट आर द कंटेंट्स, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में दिया होता है, किस तरह से करना होता है। अब अगर पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, अगर है ही नहीं बनाया है पार्टनर्स ने, तो व्हाट विल बी द रूल्स व्हिच विल बी एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? रूल्स applicable in absence of partnership deed. Okay. Okay. So what will be the rules? अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें, अगर पार्टनरशिप में कुछ दिया हुआ है, पार्टनरशिप में अगर लिखा हुआ है कि ये इस रेशियो के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड की बात कर रही हूँ, इफ इट इज रिटन इन पार्टनरशिप डीड दैट इट रेशियो के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है, देन तो इट्स ओके। बट इफ नथिंग इज मेंशन इन डीड और अगर एब्सेंट है डीड, तो क्या करेंगे? The profit will be distributed among the partners in respect of their capital contribution. उनके कैपिटल के
कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनका जो है प्रॉफिट बांटा जाएगा। जैसे सपोज ए ने 40,000 लगाए, बी ने 20,000 लगाए, ठीक है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इनका 4:2, राइट। यानी ये सॉल्व करा तो 2:1 आया, ठीक। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हमारा बटेगा। आई बात समझ में ये महावीर? Yes, ma'am. तो अगर Yes, पार्टनरशिप मिसिंग है, so in which ratio they have to distribute the profit and all in respect of their capital contribution, ठीक है। ये तो हो गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हम करें तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नो इंटरेस्ट एंड कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स इफ देयर इज नो प्रोविजन। और अगर कोई प्रोविजन होता है तो उसके लिए भी कंडीशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में ही दिया जाएगा। अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात अगर हम करें तो नो इंटरेस्ट इज ड्रॉइंग टू बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। इफ इट इज गिवन इन द डीड देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द रेट विल बी गिवन इन द डीड। Okay, salary to the partners. No partner is entitled to have any salary or commission for taking part or running the firm's business. No commission, no salary. Okay, interest on loan. इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बेटा। इट विल बी गिवन इंटरेस्ट ऑन लोन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड then तो it's okay. If it is not given and in absence of partnership deed, the interest on loan will be given to the 6%. That you should keep in your mind that the standard rate of interest on loan is 6% if there is absence of partnership deed or if nothing is mentioned. Okay? Clear? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now the next point is admission of a partner. These are very little simple points that admission of a partner में अगर हम बात करें तो in absence of partnership deed without the consent of all existing partners, मतलब जितने मान लो 10 पार्टनर्स हैं तो वो 10 पार्टनर्स पूरे अलाउ करने चाहिए किसी पार्टनर को एडमिट करने के लिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर वो 10 पार्टनर्स नहीं अलाउ कर रहे हैं तो दैट मीन्स कोई भी पार्टनर एंटर नहीं कर सकता है जो है पार्टनरशिप में, ठीक है। Each partner can participate and in conduct of the business. Each partner can inspect the books of firms and they can take a copy of their accounts also. Okay. So this was the introduction part that how we do accounting and what is necessary points to which we have to keep in our mind while preparing the accounts. Okay. Now if we comes to recording the transactions, right? Now we are acha itna that much you have clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shabib, Yes, ma'am. Shabib, Yes, ma'am. yes, have you understood whatever I told you? Yes. Okay, Shabib is a new one and who is there? Mavish, have you understood beta? Yes, ma'am. Ikra Kamal, Yes, ma'am. clear है बेटा सब? लाइबा गाजी, मोहम्मद साहिल, Yes, ma'am. लाइबा बेटा बताइए। Yes, ma'am. Then only I can move for further topic na. Okay, so everything Excuse me, ma'am. So children, now we'll move to our next topic, that is recording of partnership transaction. How we have to record the transaction in partnership. Okay. The next is
recording of transaction. How to record the transactions in partnership accounts? Okay, see children, when we were doing the sole proprietorship, then also we were preparing final accounts, right? Trading profit and loss and balance sheet we were preparing. Here also we have to prepare, but additionally one account will be maintained, that is called profit and loss appropriation. क्योंकि जब हम सोल प्रोपराइटर में करते थे तो वो प्रॉफिट सिर्फ एक इंसान लेता था, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्सन का था. The overall control and overall the business profit and losses whatever happened, the overall control for that only one person's hand, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है, we talk about partnership, तो here so many partners are there, ठीक है. तो वो जो प्रॉफिट होगा वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट वन एडिशनल अकाउंट वी नीड टू प्रिपेयर, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर? क्लियर है? Yes, ma'am. क्योंकि ट्रांजैक्शन Yes, जो हम ma'am. करते थे, व्हाटएवर द ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, they are recorded according to the principle of double entry system. And in the case of sole proprietorship, concerned to partnership will also prepare a trading profit and loss and balance sheet. But difference ये है कि अकाउंटिंग अगर सोल ट्रेडर की बात की जाए तो उसमें जो है वो एक ही पर्सन के हाथ में प्रॉफिट होता था, और जहां पार्टनरशिप की बात हम करें तो प्रॉफिट इन पार्टनरशिप फर्म दे आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स. And usually for this purpose, what the profit as per profit and loss account is transferred to a newly opened account. Profit and loss हम बनाएंगे. हमें क्या करना होता है? First of all, if we are talking about partnership firms, okay. So partnership firms में first what we have to do? We have to prepare trading account. Then we need to prepare profit and loss account. And after preparing profit and loss account, what we have to prepare? We have to prepare profit and loss appropriation. Okay. Appropriation. Okay. Profit and loss appropriation. अब क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट इसका प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा, that will be transferred to this account. Okay. Profit and loss appropriation account. Okay. Clear the things? Clear Yes, है? ma'am. Okay. कि अगर हम बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस के अप्रोप्रिएशन में हम क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं, तो जो भी चीजें पार्टनर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन आपका सैलरी हो गया पार्टनर्स का, और उसके बाद आपका कमीशन हो गया पार्टनर्स का, ठीक है. तो जितनी चीजें जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पार्टनर्स को जो देनी है, वो चीज हम कहाँ मेंशन करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मेंशन करेंगे, ठीक है. और जो चीजें हमारी एक्सपेंसेस हैं फर्म की, यानी कि जो हमारा, जैसे हमारा मैनेजर कमीशन है, तो मैनेजर कमीशन तो हमें देना ही देना है, ठीक है. मैनेजर कमीशन वी हैव टू पे, इट्स एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है. तो दैट विल गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? And if any commission is given to the partners, that will goes to profit and loss appropriation. Okay, so in profit and loss appropriation, how we used to prepare this account? Okay, so let us discuss now. Now everybody has understood that how to prepare, means why we prepare profit and loss appropriation. Okay, is it clear how why is we prepare profit and loss appropriation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, मैम एक बार और बता दीजिए. मैम ओके ओके. सी देखो, जब हम लोग जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो द फाइनल पोजीशन, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, राइट. सारे बिजनेसमैन को लास्ट में ये जानना होता है कि उसको क्या प्रॉफिट और क्या लॉस, हमारे बिजनेस की क्या कंडीशन है, ठीक है. तो वो उसके लिए क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है. फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर रही हूँ. फाइनल अकाउंट्स में हमारा ट्रेडिंग बनता है, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और बैलेंस शीट बनती है, ठीक. उसके बाद जो हमारा पीएल का आ जाता है नेट प्रॉफिट, वो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है. और ये होल सोल जितनी भी चीजें, जितना भी प्रॉफिट होता है, ये सब किसका होता है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप, दो एक फर्म का जो एक मालिक होता है,
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की तो वहां पे कई पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स जो हैं उनको भी तो जो है प्रॉफिट तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो डीड में लिखा होगा, कि अगर डीड में कुछ नहीं लिखा होगा तो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है। जो पार्टनर्स की चीजें होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है। इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं, जितना भी पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, जैसे पार्टनर को कमीशन देना तो वो एप्रोप्रिएशन में आएगा, ठीक है। पार्टनर्स को कोई सैलरी देनी है तो वो एप्रोप्रिएशन में आएगा। अगर पार्टनर से कोई ड्राइंग्स निकाली हैं, ठीक है, तो वो भी आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्लियर इकरा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Okay. So now after preparing profit and loss appropriation, now what to record in profit and loss appropriation? So let us discuss the format which we have to prepare profit and loss appropriation. Okay. Okay, children. So in this way we need to prepare the profit and loss appropriation format, particular amount, and center heading will be profit and loss appropriation for the year ended, किस कहां से किस साल के लिए कितना बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें अगर कि what the things we need to record in P&L appropriation, ठीक है। So whatever the profit we will get from profit and loss appropriation, profit only, profit that we will transfer here the credit side of P&L appropriation. Okay, so to buy profit and loss account, here we will write being profit. Okay, now whatever the expenses here, the अगर हम बात करें जो भी चीजें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, that will be written in the debit side. Why it will be written in the debit side? Because it is the expenses for the firm. Okay, firm के लिए ये क्या है, expenses हैं, और पार्टनर्स के लिए ये क्या है, इनकम है। तो पार्टनर्स की इनकम हम कब शो करेंगे, जब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, तब हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो वो शो होगा कैसे, जर्नल एंट्री के थ्रू। Here what we have to write, we have to write whatever the expenses are, means whatever the recording we have to do here, that is firm's expenses, because salary to partners, अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो सैलरी जो पार्टनर्स की होती है या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो जो भी सैलरी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होनी होगी, सैलरी टू पार्टनर्स, वो डेबिट होगा, ठीक है। पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन देना है तो वो डेबिट होगा, ओके। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज देयर तो दैट आल्सो, interest on capital, any reserve, and then whatever the profit, yes, drawings. If drawings are there, so interest on drawing is the income for the firm because it is an expenses for the partner. So by interest on drawing, okay, drawing, and that will be given. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बैलेंस करेंगे। सपोज यहाँ का 50,000 आया, 50,000 वी विल राइट, इट्स जस्ट एग्जांपल, एंड इधर का टोटल किया तो वी गॉट 40,000, ओके। सो 40,000 इज लेस देन, तो 50 में से 40 डिडक्ट कर दिया, कितना बचा, 10,000 प्रॉफिट वी गॉट, एंड दिस 10,000 विल बी distributed among the partners. Suppose A and B are the partners and they divide their profit equally. So this 10,000 will be divided equally between A and B. और लिखा क्या जाएगा, profit transfer
कभी कभी ये भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में एक ही दो चीजें दी हो, ये सारी चीजें ना दी हो, तो दैट विल बी डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. ओके, so this is the format that what the things we have to record in P&L appropriation. Here in debit side, salary to the partner, commission to the partner, interest on capital, reserves, profit, and here the profit which we will transfer from profit and loss account, and here the interest on drawing. Okay. So children, let us move to the next topic, that is fluctuating and fixed capital, which is going on right now. Okay. So जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं, so that you people can cope up with the other students also. Okay. So next point is fixed and fluctuating capital. बेटा fixed and fluctuating capital बहुत ही सिंपल है, ठीक है. ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल. देखो क्वेश्चन में कभी कभी क्या दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपके दिया होता है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ठीक है, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, या कभी कभी क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया होता है. तो जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो कैपिटल्स है वो फ्लक्चुएटिंग है. फिक्स कैपिटल का मतलब होता है इस सिस्टम में द ओरिजिनल कैपिटल जो इन्वेस्टेड होती है पार्टनर्स की, वो रिमेन कांस्टेंट रहती है थ्रू लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस. बिजनेस जब तक चलेगा तो उनकी कैपिटल जो है वो कांस्टेंट उतनी ही रहेगी जब तक कोई फर्दर एडिशनल कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस ना की जाए. ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दो टाइप के अकाउंट्स बनते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी क्वेश्चन में, इसका मतलब ये है द कैपिटल विल बी रिमेन कांस्टेंट throughout the life of the business until unless any additional capital will not be introduced. So fixed capital में हमारे दो टाइप के अकाउंट्स बनते हैं. एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट. ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये दो अकाउंट बनते हैं जब कैपिटल्स हमारे फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, और अगर हमारे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते हैं, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि हमारी जो कैपिटल होगी बिजनेस में वो क्या होगी, टाइम टू टाइम दे कीप चेंजिंग ऑन. ठीक है, ये चेंज होती रहती है. ठीक है, तो इसमें सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के कंडीशन में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में हम शो क्या क्या करते हैं. ठीक है, तो जल्दी से ये चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएट, जब फिक्स कैपिटल होती है तो कैपिटल अकाउंट में क्या जो है वो शो करते हैं, और करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट में वो सारी चीजें क्रेडिट की जाती हैं जो हमने पार्टनर्स को दी हैं. जो पार्टनर्स को मिली है वो सारी चीजें पार्टनर्स की क्रेडिट होती हैं. और अगर पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग की है, अगर पार्टनर से कोई ड्राइंग की है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो करेंट अकाउंट में दिया जाता है. ठीक है, ये अभी हम थ्योरी पार्ट लेंगे क्योंकि एक साथ ज्यादा नहीं समझाएंगे, क्योंकि अगर ये सब एक साथ समझाएंगे तो सब कुछ बाउंस हो जाएगा. ठीक है, तो अभी सिर्फ इसको वर्बली ही समझिए. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हम लोग कल करेंगे तो मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन इसका दे दूंगी. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो चीजें क्रेडिट की जाती हैं जो हमारी ओपनिंग कैपिटल दी होती है. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल जो दी होती है, और या फिर कोई एडिशनल कैपिटल दी जाती है तो वो शो किया जाता है. और यहाँ पे करंट अकाउंट में हम क्या शो करते हैं, जो भी हमारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं चीजें वो. ओके चिल्ड्रन, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे. ओके, ऑलराइट, होप एवरीथिंग इज क्लियर. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. And yes, I want your attendance from tomorrow onwards. Nobody will be absent. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. Thank you.